قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے، لا ينکح الزانی الا زانیۃ او مشرکۃ، زناکار مرد کی شادی، زنا کرنے والے مرد کی شادی زانیہ عورت سے کراؤ یا پھر مشرکہ عورت سے۔ کیوں؟ زناکار مرد کی شادی یا تو مشرکہ عورت سے ہونا چاہیے یا مشرکہ عورت سے، زناکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے اس کی شادی ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح ایک زناکار مرد ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے زناکار عورت ایک مرد سے سنتشٹ نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے مشرک ایک اللہ پر توکل نہیں رکھتا ہے اور ایک اللہ پر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے زانیہ اور بدچلن عورت کئی مردوں سے سنتشٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے مشرک اور شرک کرنے والا مرد بہت سے دیوی دیوتاؤں سے خوش ہوتا ہے، وہ ایک اللہ پر وہ پورا اعتماد نہیں کر پاتا اور وہ ایک اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں رکھ پاتا۔ اس لیے زنا اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس منتر پر غور کرو، وہ ویشیا سمان ہے۔ قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زناکار مرد کی شادی کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی ہے۔ مشرک اور زناکار میں کوئی فرق نہیں، زانی مرد ہو یا عورت، ایک مرد یا ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا، اسی طریقے سے مشرک بھی ایک اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپناتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو بٹوارے کر لیتے ہیں، یہ پانی برسانے والا ہے، یہ کھانا دینے والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ کھیتوں میں اناج پکانے والا ہے۔ اور ہندو دھرم کے اندر تو دیوی دیوتاؤں میں کی تعداد آپ گن نہیں پائیں گے، حالانکہ ان کی گنتی بتا دی گئی ہے 33 کروڑ۔ 33 کروڑ، ان میں آپ اپنی بیوی سے، جو مرد ہم بستری کرتا ہے، جو جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملتا ہے، جس کو ہم اور آپ ہم بستری کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، صحبت کہتے ہیں، اس ہم بستری کو بھی ہندو دھرم کے اندر ایک دیوتا مانا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا کام دیو۔ یہ بھی ایک دیوتا ہے۔ جو آپ دھن کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، جو رزق حلال کما رہے ہیں محنت و مزدوری کر کے، ہندو دھرم کے اندر اس کو بھی ایک دیوی کا درجہ دیا گیا ہے، لکشمی دیوی۔ 33 کروڑ ہیں، گن نہیں پائیں گے آپ۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایکیشورواد و توحید اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ مہی دیوسے سویتو پرشتوتی، مہان ہے وہ دیوتا، دیوس ہمارا دیوتا، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، سویتو جس کے لیے سب کی سب، ساری کی ساری، پرشتوتی پرشنسائیں ہیں، تعریف ہیں۔ دیکھیے اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا رگ وید میں، مہی دیوسے سویتو پرشتوتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں، تعریفیں ہیں۔ قرآن کریم جو پہلے آنے والی کتابوں میں جو سچائی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں جو ملاوٹ ہے قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر اس کو پرکھا جائے گا، اصلی کو اصلی، ڈالڈا کو نقلی ثابت کرتا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है यही कुरान। वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी महीदेवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है, हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये एक ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते। बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदयामाना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है, कैसे कह दिया जाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का आगमन हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है। दया, एक इस मिसाल पर गौर कीजिए, मां की ममता से भी ज्यादा, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हमें यह बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मां की ममता से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा। अब मां की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। आपने अपनी बेटी की शादी की, मौलवियों के हजार बोलने के बावजूद भी जहेज की प्रथा रुकी नहीं, आपने जहेज भी दिया, आपने बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी ससुराल जाती है, आपके घर से निकलती है, मैके की तरफ से मिले हुए बर्तनों को बहुत संभाल कर रखती है। कांच के 2 गिलास वो रखे हुए थे, वो साफ करने के लिए उठती है और एक एक बर्तन को साफ करती है। अचानक कांच का एक गिलास उसके हाथ से छूटता है और जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एक गिलास बच गया, हमारी बेटी किस गिलास को रखेगी? एक तो टूट गया, चूर चूर हो गया और दूसरा बाकी बचा है। अब हमारी बेटी क्या करती है? जो बच गया उसको तो संभाल के रख रही है, लेकिन जो टूट गया जमीन पर जल्दी पैर भी नहीं रखती, अपने किसी बच्चे को आने भी नहीं देती।
नहीं इधर मत आना बेटा, कांच कहीं पैर में चुभ गई तो तकलीफ देगी। उसके बाद फिर वो झाड़ू से साफ करती है, एक एक तिनका उस कांच का उठाती है और फिर वो डस्टबिन में कूड़ेदान में उसको फेंक देती है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, क्योंकि वो जानती है कि अब ये कांच का गिलास मेरे किसी काम का नहीं है, जो टूट गया है उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों की उम्र 15-15, 16-16 साल की हो चुकी है। लेकिन एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा कमा के लाता है, एक बच्चा मजदूरी करके लाता है। वो अपनी माँ का पेट पालता है, उसका भरण, उसका पालन पोषण कर रहा है, अपनी माँ को खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से अपाहिज है, जबान से गूंगा है, चलने फिरने के लायक नहीं है, पैरों से लंगड़ा हो चुका है। वो पेशाब वो पायखाना भी उसी बिस्तर पे करता है, वो उठने की ताकत नहीं रखता, वो बाथरूम नहीं जा सकता, वो अपनी गलाजत और गंदगी को अपने हाथ से साफ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी माँ का बेटा है, एक बेटा काम का है, दूसरा बेटा माँ पर बोझ बना है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज इन दोनों बच्चों में से माँ को सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से होगा? हमारी बेटी ने उस गिलास को तो फेंक दिया जो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन ये माँ इस बच्चे को क्या निकाल देगी अपने घर से? क्या बाहर फेंक देगी अपने घर से? कहेगी कि तू मेरे ऊपर बोझ बन गया है, निकल मेरे घर से, तू किसी काम का नहीं रहा। क्या उसको अनाथ आश्रम में डाल देगी? नहीं नहीं, यह आपकी गलत ख्याली है, गलत फहमी है कि वो अपने बच्चे को घर से निकाल देगी। हकीकत ये है कि ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी बनिस्बत उसके जो सही और सालिम है, जो कमा कर लाता और खिलाता है, उससे ज्यादा इस बच्चे से मोहब्बत करेगी। अब रोटी का लुकमा वो उस बच्चे को नहीं खिलाएगी जो उसके लिए कमा रहा है, बल्कि अपने हाथ से रोटी का लुकमा तोड़कर अपने अपाहिज बच्चे को खिलाएगी। उसकी शर्मगाह नहीं देखेगी जो बच्चा कमा के ला रहा है, बल्कि इसकी शर्मगाह को देखना तो बहुत दूर की बात, ये माँ है अपने हाथ से पाल पोष कर बड़ा किया है, उसकी गलाजत और गंदगी को साफ भी करेगी। माँ की ममता ये गवारा नहीं करेगी कि हम इस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे को घर से बाहर निकाल दें, बल्कि इस माँ को सही सलामत बच्चे से ज्यादा इस अपाहिज और लंगड़े लूले बच्चे से प्यार होगा। मेरे भाइयों गौर करो, जब माँ की मोहब्बत इस लंगड़े लूले और अपाहिज बच्चे से इस हद तक है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि हदीस में तो यहाँ आया, गुनाहगार उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मगफिरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार बंदे से माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती आती है, मोहब्बत और दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्ते ये कि वो सिद्क दिल से तौबा कर रहा हो, वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसुर दया माना जो वेद में आया है, ऋग्वेद में, वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा है कुरान।